This is just an interactive video because for the first time. It was very difficult for me to find my books and all. Basically, I found my biology book of 11th. So I'll just make an introduction today that which chapters are important for your to clear exams, and then I will give you the shortcut tricks or mnemonics which will help you to learn all the examples and lines of NCRT and all. Because being a medico, we just learn each and everything. Basically, if you come to the first year, I wish all of you get the success and get admitted. When you go to the first year, you get born, so you get to learn the names of the muscles, bone. How do you learn all that? You have to follow the mnemonics. As simple as anything you can make of it. So that thing I made started to make at my preparation time, and that helped me a lot to get selection. And that mnemonics I'll share with you my school days. So first of all, let's talk about the biology, which covers the 50% syllabus. I know each and every student who are preparing for medical entrance has the grasp on his biology or her biology because that's the favorite subject, of course, and you are interested too. So, and it covers about 50% of the syllabus. It means now at 90 questions, so say 60 marks, and you should get at least 510. I believe in these days you at least think about getting 510 marks plus if you're a general candidate to get admission in the MBBS college for the first time, basically. So, first of all, let me tell you which chapters are most important, and just trust me, guys. If you follow this, no one can stop your selection because I was. Let me tell you, I'm an average student. I was an average student. I just got 87 in my 10th and 84% in my 12th. I was not a very brilliant student, not in my classes or my coaching institute. But just I, just I focused or just I thought about getting my admission to the MBBS college does not mean how much I know. Getting your admission to the MBBS college through entrance examination means how much you can retain. It's not important आपने कितना पढ़ा है, इट्स इम्पोर्टेंट कि आपने कितना याद रखा है अब तक. ठीक है. तो बेसिकली हमें वो देखना है कि हम पढ़ के हमें एक पर्टिकुलर टाइम तक हर चीज़ हमें रिवाइज करना है. ठीक है. और ट्रस्ट मी गाइस, बायो में आपको कुछ नहीं छोड़ना. बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो 100% कवर्ड होने चाहिए. ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी लाइन्स आपको देखना है कि आपके जो बायो के टॉपिक्स हैं उसके आपको ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स सब याद होने चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं 11th में, जो कि है लिविंग वर्ड, द डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ड. इसका ये फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड ये सबको आता है एंड इट्स ओके टाइप्स. एक बार को एक क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. ये 3 चैप्टर्स जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इससे आपके 90 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आएंगे. इट मीन्स 40 मार्क्स, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आएंगे एटलीस्ट. मैं आपको बता रहा हूँ 3 चैप्टर्स. और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है एनिमल किंगडम के, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस एनिमल किंगडम के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं जनरल कैरेक्टर बेस्ड आता है. हम जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ा, आई कांट टेल यू द नेम. सो मैंने भी पढ़ा, 2 साल मैंने ड्रॉप किए, 1 ईयर कोर्स किया था मैंने. तो फॉर द 1 मंथ और मोर देन दैट हमें बस एनिमल किंगडम पढ़ाया था. आपने भी पढ़ा होगा फाइलम, सब फाइलम क्लासेस हर के, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. इट्स जस्ट
to waste our time. If you are preparing for NEET, think about NEET for the first time. If you are preparing for NEET, then एनिमल किंगडम में कोई भी क्वेश्चन आपको जनरल कैरेक्टर्स या एग्जाम्पल के अलावा you won't get it. So don't go into depth. Don't go into subclasses, classes for all the phylums. Basically, the topics जिसके क्लास या सब क्लास हमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे लास्ट मैमेलियन क्लासेस वगैरह दिए हुए हैं, पाइसेस के दिए हुए हैं, हमें बस उस पर ही देखना है. आप पहले देख लो, कहीं भी क्वेश्चंस देख लो आप पिछले 10 ईयर्स के, जनरल कैरेक्टर्स एग्जाम्पल के अलावा आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है. देन प्लांट किंगडम, इट्स अ कॉम्प्लेक्स चैप्टर, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड को मतलब काफ़ी लर्निंग बेस्ड इससे आता है, और इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको ये चैप्टर लाइन बाय लाइन थॉरली पढ़ना है, ठीक है. फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोअर बॉटनी कहते हैं, इसमें ये वाला, इसमें आपको जो ये फर्स्ट 2 पेजेस है, ये वाला पेज जहाँ पे उसने क्लासिफिकेशंस कैसे किए थे आई गेस वो सब है, और ये वाला पेज, यहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. दो बस इस फर्स्ट ये हाफ पेज और ये यहाँ तक कि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है. बाकी सबके आपको जनरल कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स तो ज़्यादा है नहीं चैप्टर में. आई गेस आप सोच रहे होंगे कि आई बुक इज़ लाइक रबिश. बहुत लिखा करता था अपने टाइम पे बुक्स में, बिकॉज व्हाट टू से, मैंने एनसीईआरटी पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी पेपर से पहले. तो इसके सब क्लासेस आपको जो एनसीईआरटी में है एज इट इज़ आपको सारे लर्न करने हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डायग्राम कभी मत छोड़िएगा, बिकॉज आपको नहीं पता कब कौन सा क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आ जाए, ठीक है. तो इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन है, फिर एनिमल किंगडम है, एंड देन प्लांट किंगडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन मॉर्फोलॉजी, आपको पता है, मुझे पता है, हर किसी को पता है, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स में से एक जो कि हम सोचते हैं. इसमें फैमिलीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर एग्जाम्पल्स बेस्ड आते हैं. इसमें भी आपको थॉरली पढ़ना है, क्योंकि 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट आएंगे. फैमिली अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, बिकॉज एक क्वेश्चन आता है फैमिली के कैरेक्टर्स पे बेस्ड या फिर फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल फॉर्मूला पे बेस्ड. उसके लिए आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप स्मार्ट वर्क कीजिए, जैसे मैंने किया था. मुझे जो कैरेक्टर्स नहीं आते थे मैंने नहीं किए, ठीक है. तो आप, बट एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इससे अगर आप कवर कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं, जैसे फैमिली में प्रॉब्लम है, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा फैमिली बेस्ड, या तो नहीं आएगा या बस एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है. फिर एनाटॉमी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इससे ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं. तो इसके मेनली आप जो लास्ट के 2-3 पेजेस हैं सेकेंडरी ग्रोथ वाले, बेसिकली वो आप पढ़िए, बाकी सब आसान है. फिर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल, ये बहुत आसान चैप्टर हो गया है. हमारे टाइम में इसमें कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग तीनों आता था, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था अर्थवर्म के कारण, बट अब आपको फिर भी कॉकरोच आता है बस. और टिश्यूज़ में एग्जाम्पल्स के अलावा कुछ नहीं है. डेफिनेशंस नहीं पूछते, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जनरली, अभी जो मैंने देखा है, तो आपको ये देखना है. फिर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, और बायोमोलिक्यूल्स. देखिए सर, बायोमोलिक्यूल्स आपको करना ही करना है, क्योंकि इससे आपका जूलॉजी और केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर कवर होता है. तो ये आपके लिए डू एंड डाई वाला सिचुएशन है, और जूलॉजी में अच्छे खासे क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल से आते हैं, और ये काफ़ी लिंक्ड है आपके जेनेटिक्स से भी थोड़ा बहुत. और केमिस्ट्री में जो आप बायोमोलिक्यूल्स का एक चैप्टर है, इसके साथ आप केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको करना है, ये आप छोड़िएगा मत. और फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत बेसिक सा चैप्टर है. बेसिक फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो देखते हैं. फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आया है जनरली. जो फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, या फिर M2 फेज में जो भी हैं, उस पर बेस्ड आते हैं जनरली. जैसे कि हम मॉर्फोलॉजी कब अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं, या फिर कब सेल सबसे अच्छा विजिबल है, उस टाइप की चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. तो आपको ये चैप्टर भी देखना है, क्योंकि आसान चैप्टर है और इसे छोड़ना नहीं है. फिर आपको पता है प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है.
Basically, if you are planning to get admission in MBBS, you are planning to study medicine, तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ नहीं है, आप फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में इतना कुछ पढ़ोगे कि आप ये सब भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको ये देखना है और आपको ये करना है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप कुछ मत छोड़िए। डाइजेशन के जो लास्ट के 2 पेजेस हैं जहाँ पे आपको मुश्किल होती होगी लर्न करने में, वाइटामिन्स एंड ऑल, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में कुछ नहीं है, सर्कुलेशन इज़ वेरी इजी। लास्ट के 2 चैप्टर्स न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इसके जो हॉर्मोन्स हैं आपको 12th में भी काम देंगे और आगे भी काम आएगा। डोंट स्किप दिस चैप्टर। न्यूरल कंट्रोल में लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि कौन सा सेंटर क्या कंट्रोल करता है, या फिर डायग्राम बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। बट केमिकल कोऑर्डिनेशन आप मत छोड़िए। फिर आया प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन दोनों बहुत छोटे से चैप्टर्स हैं, और मिनरल न्यूट्रिशन में जो नाम है उसके मैं आपको बहुत जल्द ही एक फॉर्मूला दूंगा जिससे आपको सारे एग्जाम्पल्स ईजिली याद हो जाएंगे। फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बड़ा चैप्टर बट आसान है। फिर बचते हैं ये 2, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो इसमें रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है छोटा है, बट फोटोसिंथेसिस बड़ा है। तो और बट इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से ज़्यादा। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप इस एक चैप्टर के चक्कर में यू कांट अफोर्ड टू लीव अदर चैप्टर्स।